students, good morning. I am your teacher Monica English. So, what we are going to study today? In English class, we will study nouns, gender. Now, what is a gender? As you know, gender means male and female, masculine and feminine. Fine. So, we are going to study nouns, gender. Nouns are divided into 4 categories according to their genders. ठीक है, nouns कितनी categories में divided होता है? 4 categories. First is the masculine gender. Masculine gender. The other is feminine gender. Feminine gender. Then is your common gender. And then is neuter gender. Today we are going to study these 4 genders. So, a noun that refers to a male is said to be a masculine gender. Whatever is a male, जैसे boy, man, या जो भी चीज मेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर. Suppose male, anything male is a masculine gender. A noun that refers to a female is said to be feminine. और female को जो represent करता है that is a feminine. Boy, sir, girl, queen. Fine. These are feminine genders जो female होते हैं. और a noun that refers to either male or a female is said to be a common gender. जो दोनों चीजें होते हैं उनको क्या कहते हैं? Common gender. जैसे both, male and female both, इनको क्या कहते हैं? जैसे suppose example student. इसमें स्टूडेंट में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, है ना? स्टूडेंट, फ्रेंड. अब फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. ठीक है, तो वो क्या हुआ? कॉमन जेंडर. नेक्स्ट इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग इज अ न्यूटर जेंडर. अब जो चीज लिविंग नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज नॉन लिविंग थिंग कौन सी है हमारी? बताओ. आपको पता है ना लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, लैपटॉप, ये सब क्या हो गए हमारे? न्यूटर जेंडर. फाइन. चलिए, अब आपको क्लियर हो गए 4 टाइप्स के genders. Masculine, feminine, common and neuter. Masculine is male, feminine is female, common is both, and neuter is the non-living thing. Okay? So please ये आप एक बार इसको कोई एक्टिविटी करके या फिर एक्सरसाइज के थ्रू आप प्लीज करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. चलिए, let's move on to the exercise A. Exercise A. Exercise A says underline nouns and write M for masculine, F for feminine, C for common and N for neuter gender. ठीक है? उन्होंने हमें दे दिए M for masculine, F for feminine, N for neuter and C for common gender. ये 4 genders के M, F, N दे दिए उन्होंने. तो first one says
The waiter served food. Now, what is a waiter? Waiter is a masculine. Waiter. वेटर क्या होगा? मैस्कुलिन. तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे. और सर्व फूड. और फूड क्या हुआ हमारा? नॉन लिविंग थिंग. तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम? न्यूट्रल जेंडर. ठीक है? दिस वे यू विल डू. नाउ द सेकंड सेज the room was designed by the architects. Now room here is what? Room is the neutral gender. And architect is a common gender. क्योंकि architect मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ठीक है? The boy studies in the school. The boy study in the school. So third one का क्या आएगा? Boy. Boy हमारा क्या हुआ? Masculine gender. Study in the school. School क्या हुआ? Neutral gender. ठीक है? This way you will finish this exercise. The boy helped the old woman by carrying her bags. Boy here is masculine gender. Woman is a feminine gender. Bags is a neutral gender. Fine. Formation of feminine gender of nouns. A number of nouns change to feminine form by adding ess. Okay. कहते हैं कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है जब हम उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है? ess. Suppose if we are saying author का ये क्या है? ये है मैस्कुलिन जेंडर. और इसका फेमिनिन क्या होगा? फेमिनिन होगा ऑथरेस. फाइन. ऐसे ही हमारा आगे क्या है? पोएट. पोएट का फेमिनिन क्या होगा? पोएटेस. फाइन. आगे हो गया पोएटेस. ऐसे ही लाइन का क्या होगा? लाइनेस. समझ रहे हैं आप? तो मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए ESS लग गया उसके आगे. सो आप ये सारे एक बार गो थ्रू कीजिए. काउंट का काउंटलेस, हायर का हायरेस. समटाइम्स स्पेलिंग में हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ESS. अब क्या कहते हैं? कई मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा स्पेलिंग को चेंज करने के लिए ESS यूज होता है. ठीक है? जैसे actor is a masculine. actress होगा. नहीं, इसमें हमें स्पेलिंग चेंज करना होगा. स्पेलिंग चेंज करके क्या करेंगे? ओ हटा देंगे इसका हम. ठीक है? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस. एक्टोरेस नहीं होगा, एक्ट्रेस. तो स्पेलिंग क्या होगा? यहाँ पर चेंज हो गया. ठीक है? ओ हट गया हमारा. ऐसे ही सपोज एम्परर. एम्परर का क्या हो जाएगा? एम्प्रेस. तो ये आपको थोड़ा सा जजमेंट करना है कि मैम कैसे इसमें से स्पेलिंग चेंज हो रहा है. ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं. वेटर का वेटरेस, टाइगर का टाइग्रेस. टाइगर TIGER होता है तो वो TIGRE हो जाएगा, टाइग्रेस. ठीक है? हंटर का हंट्रेस. In most of the cases an entirely different word is used. और कई बार क्या होता है? जो मैस्कुलिन जेंडर है ना उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट जेंडर यूज होता है फेमिनिन में. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ब्रदर. अब ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? ब्रदरेस तो नहीं हो सकता ना. क्या होता है? भाई का बहन. ब्रदर का सिस्टर.
सो कंप्लीटली चेंज हो गया, सिस्टर। फाइन। हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्लीटली फेमिनिन जेंडर चेंज हो जाएगा इसमें आपका। हीरो का हीरोइन, मॉम का नन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, सन डॉटर, मिल्कमैन मिल्कमेड, ड्रेक डक, पीकॉक पीहन, हॉर्स मेयर। ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे ये वाले मैस्कुलिन और फेमिनिन, बिकॉज इसमें मैस्कुलिन का अलग वर्ड है, फेमिनिन का कंप्लीटली अलग वर्ड है। किंग क्वीन, नेफ्यू नीस, cock hen, gander goose, right? So let's move to the exercise B. Exercise B क्या कहती है? Let's see. Exercise B. What does exercise B says? Fill in the blanks. You have to fill the blanks. अब इसमें कैसे है? एक है मैस्कुलिन, एक है फेमिनिन। अब कहीं उसने fill in the blank मैस्कुलिन में दिया है, कहीं उसने फेमिनिन में दिया है। विडोअर, विडोअर क्या होता है? जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उसे विडोअर कहते हैं। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उस लेडी को क्या बोलेंगे? उस लेडी को बोलेंगे हम विडो। तो मैस्कुलिन क्या है इसका? विडोअर। और फेमिनिन क्या हो जाएगा? विडो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम ड्रेक। ड्रेक, ड्रेक क्या होता है? ड्रेक होता है मेल डक। ड्रेक क्या होता है? मेल डक। ड्रेक, ड्रेक का क्या हो जाएगा? ड्रेक का हो जाएगा डक। ड्रेक का डक। फाइन। ऐसे ही गैंडर, गैंडर क्या होता है? मेल गूस। गैंडर, गैंडर, गैंडर का क्या हो जाएगा? गूस। ठीक है, ये तो सभी याद करने वाले हैं सारे। पीकॉक, पीकॉक का पीहन। पीकॉक, पीकॉक का क्या हो जाएगा? पीहन। पीहन। नेफ्यू का नीस, किंग का क्वीन, सर का मैडम, बुल का काउ। बुल का क्या हो जाएगा? काउ। फाइन। सो ऐसे you will do the exercise B by filling up the blanks in it. Okay? चलिए, let's move to the next exercise. This is very interesting chapter and a very easy chapter, isn't it? ये तो आप समझ भी गए होंगे अब तक और फटाफट कर भी लेंगे, है ना? Exercise C पे चलते हैं। Now in exercise C, it says change the underlined nouns from masculine to feminine gender. अब इन्होंने सेंटेंस दिया है, उसमें इनमें जो नाउन है कहता है उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है। तो कैसे करना है? सी का फर्स्ट देखिए, द बॉय केम फर्स्ट इन द क्लास। तो जब मैं इसे फेमिनिन में करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? द गर्ल केम फर्स्ट in the class। ठीक है, the girl came first in the class। तो मैंने क्या किया? मैंने boy को girl बना दिया। Fine। Next one says the man came in the evening। यहाँ क्या करेंगे? Come on, बताओ फटाफट। The woman came in the evening। तो क्या आया? वुमेन। फाइन। क्या आया? वुमेन। मैन की जगह क्या आ गया? वुमेन। द नेफ्यू वेंट टू दिल्ली। सॉरी, आर नेफ्यू वेंट टू दिल्ली। सो आर नेफ्यू की जगह क्या हो जाएगा? आर नीस। नीस वेंट टू दिल्ली। आर नेफ्यू वेंट टू दिल्ली। तो उसका नेफ्यू का क्या बन गया? नेफ्यू का बन गया नीस। नेक्स्ट इज द वेटर वॉज वेरी कॉर्डियल। द वेटर
was very cordial, तो इसका क्या हो जाएगा? The waitress was very cordial. Right? This is the fourth one. Now the fifth one says the king is riding a horse while the prince is playing. है ना? इसमें जितने मैस्कुलिन है उनको हमें क्या कर देना है? उन्हें हमें फेमिनिन में कन्वर्ट कर देना है. Right? So let's do this exercise. Question number 5. The king की जगह क्या हो जाएगा? The queen is riding और हॉर्स का क्या चेंज होके हो जाएगा? राइडिंग अ मेयर. हॉर्स की फीमेल को क्या बोलते हैं? मेयर. राइडिंग अ मेयर while the prince is playing alone. While the princess is playing alone. Princess is playing alone. Fine. तो क्या हो गया? क्वीन बन गया, मेयर बन गया और प्रिंसेस बन गया, है ना? So all these have been changed into a feminine gender. So this is a very easy exercise और आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि मैस्कुलिन कौन से हैं, फेमिनिन कौन से हैं, न्यूटर कौन से हैं और कॉमन जेंडर्स कौन से हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज डी. Change the underlined nouns from feminine to masculine. अब क्या किया इन्होंने अब इन सेंटेंसेस में फेमिनिन वर्ड्स यूज किए हैं जिनको आपने कन्वर्ट करके किस में करना है? मैस्कुलिन वर्ड्स में करना है. कह रहा है कि इन्होंने एक वैल्यू कॉर्नर दी है, इसे भी गो थ्रू करना. बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर इन स्कूल्स. फाइन, ठीक है, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं स्कूल्स में. देयर टीचर्स लव देम इक्वली बट सम पीपल डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. इज इट राइट टू डिफरेंशिएट? बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या देखिए, अब घर में आप भाई बहन होते हैं, ठीक है, और स्कूल में आप सब फ्रेंड्स होते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स सब इकट्ठे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. अब मैं एक चीज बताऊंगी, जैसे आप स्कूल्स में सब पढ़ते हैं तो वहाँ बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर मेल फीमेल सब हैं, और ऐसे ही घर पे होते हैं सब, ठीक है. तो आपको क्या चीज यहाँ से पता चलती है कि हमें बॉयज और गर्ल्स में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम सब इक्वल हैं. कभी किसी के साथ ये भेद नहीं करना कि मैं लड़का हूँ तुम लड़की हो, लड़कियां ऐसे करें, लड़कियों के घर के काम करने चाहिए, बॉयज को नहीं करने चाहिए. नहीं, सब इक्वल है, सबको मिलके काम करने चाहिए. अगर गर्ल्स भी घर के काम करेंगी तो बॉयज को भी करने सीखने चाहिए, बिकॉज वो आपके इन फ्यूचर काम आते हैं. तो आपको इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है, ठीक है, कि बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सब इक्वल है. ओके, या तो आप अपने व्यूज इसमें यस में भी लिख सकते हैं और नो में भी. आप क्या व्यूज हैं कि यस वी आर इक्वल और वी आर नॉट, ठीक है. सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज and the thought process which you have in your mind. So let's move forward to exercise D. Now in exercise D, it says change the underlined nouns from feminine to masculine. अब इसमें क्या करना है? हमने feminine से masculine करना है. Exercise D. First question. The girl is waiting for her mother. Now girl का क्या बन जाएगा यहाँ? The boy is waiting for
for his father. मदर का क्या बन जाएगा? फादर. ठीक है, बॉय और फादर हो जाएगा जब हम उसे मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं. चलिए सेकंड वाला लिखेंगे. सेकंड सेज द क्वीन लव्ड द पीहन. अब यहाँ क्या हो जाएगा? क्वीन की जगह क्या हो जाएगा? द king loved the peahen का क्या बन जाएगा? peacock. peahen का क्या बन गया? peacock. ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए. The princess had a mare. प्रिंसेस के पास क्या था? प्रिंसेस के पास था mare. The prince आ जाएगा प्रिंसेस की जगह. prince had, और मेयर क्या होता है? फीमेल हॉर्स, और हम क्या बनेंगे अब? मेल, तो बन जाएगा हॉर्स. had a horse. The prince had a horse. Right? अगला है the milkmaid gave us milk. अब मिल्कमेड को हम किस में चेंज कर देंगे? मैस्कुलिन में. कैसे करेंगे? देखिए, नंबर 4 लिखिए. द मिल्कमैन gave us milk. ठीक है, मिल्कमैन ने हमें मिल्क दिया. ठीक है, मिल्कमेड की जगह क्या आ गया यहाँ पर मैस्कुलिन फॉर्म में? मिल्कमैन. नेक्स्ट इज द वॉशर वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स. अब वॉशर वुमेन की जगह क्या हो जाएगा? द वॉशर मैन वॉश्ड क्लोथ्स. ठीक है, वॉशर मैन वॉश्ड क्लोथ्स. वुमेन का क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा. ठीक है, अब अगला क्या है? द डो वॉज हर्ट. द डो वॉज हर्ट. डो किसको बोलते हैं हम? डो बोलते हैं the duck was hurt. The buck was hurt. ठीक है, सो ये यहाँ पर हम ये यूज करेंगे. ओके, चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. सो आप अपनी कैट्स की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए. और as they say, if you have to write in notebooks, you write in that notebooks. If they say to fill it up in the books, you can do it in the books. Fine? चलिए next हम चलते हैं. We should revise a little bit. We can form the feminine gender of nouns by adding ess to the masculine genders. हम कैसे मैस्कुलिन जेंडर्स के आगे ess लगा के उन्हें फेमिनिन बना देते हैं. बैरन का बैरोनेस, होस्ट का होस्टेस, है ना. Adding ess after altering the spelling of the masculine gender. कई बार स्पेलिंग्स चेंज करके भी उसके पीछे ess लगता है, जैसे टाइगरेस, वेटरेस, है ना. दूसरा, यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड. एकदम ही डिफरेंट वर्ड को कैसे यूज करा जाता है, जैसे कि ब्रदर का सिस्टर, मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल. और अब आप इस पे एक चीज और कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी. उसमें आप क्या करिए, एक बी बनाइए. पेपर कटिंग से बना सकते हैं, पेपर से बना सकते हैं. ठीक है,
बी या बर्ड, कोई भी जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बर्ड बना दिया, ठीक है, ये इसका स्टमक बना दिया, ठीक है, और ये मैंने इसके विंग्स बना दिए। यहाँ पर मैं लिख दूंगी मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, यहाँ लिख दीजिए फेमिनिन। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेपर फोल्डिंग से। आप ऐसे एक सर्कल का पेपर फोल्ड करके इसके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बॉय। और जब इस फ्लैप को आप खोलेंगे, जो नीचे वाला फ्लैप होगा इसके, उसमें होगा गर्ल। ठीक है, इट कैन बी अ फोल्डिंग थिंग, यू नो, बॉय गर्ल। सर, मैडम, यहाँ लिख सकते हैं मैडम। यहाँ पर बुल, यहाँ लिख सकते हैं काउ। ठीक है, ऐसे आप एक क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं बाय यू नो राइटिंग द मेल फीमेल्स, और उससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा, एक आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इज द वे यू कैन राइट, इवन यू कैन राइट द डिफरेंट वर्ड्स, जैसे हस्बैंड, नीचे वाले फ्लैप में लिखेंगे वाइफ, वाइफ। ठीक है, ऐसे फ्लैप्स और बना लेंगे इसमें, फिर एक और बना दीजिए ऐसे ही। तो जो ये फ्लैप्स हैं, ये वैसे ऐसे पूरा एक सर्कल लेंगे, उसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये एक फ्लैप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ इधर अंदर वाली तरफ वाइफ लिख दिया, और जब ये फोल्ड करके ऊपर आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है सपोज हस्बैंड। ठीक है, या फिर आप चिट्स बना सकते हैं। मैस्कुलिन चिट्स आप गर्ल्स को पकड़ा दीजिए, फेमिनिन चिट्स आप बॉयज को पकड़ा सकते हैं, या अल्टरनेट जैसे भी हो। तो किसी के पास पीकॉक है, तो दूसरा बच्चा शब्द करके कहेगा कि आई एम अ पीहन, एक कहेगा आई एम अ बॉय, सो दूसरा कहेगा आई एम अ गर्ल। यू नो, ऐसे करके आप इन चीजों को एक प्रैक्टिस और एक एक्टिविटी की तरह बच्चों के इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हें इस एक्टिविटी के थ्रू ये सब क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय, सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास।